non-metals and their compounds. सगळ्यांना ठीक है. Okay, so this is the again one more important topic remain to complete. So that topic again consists of carbon, hydrogen, nitrogen, their compounds. Now in this current topic, so first we are going to see the hydrogen. Now isotopes of hydrogen, then we have to see properties of hydrogen, their preparation methods, chemical properties, dihydrogen uses, hydrides, and compounds of hydrogen. In that we have to see water, properties of water, carbon, कार्बन के एलोट्रॉप्स, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यूजेस, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स, ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, gasoline, organic compounds, and etc. So such point here we have to study in this present topic. Present topic में इतने सारे points हमें क्या करने हैं, study करने हैं. So first of all here we are going to see the hydrogen. Hydrogen is nothing but lightest element. It is the lightest element. Lightest element which contain only one proton and one electron. Having atomic number 1. Having atomic number 1. Now this is the dihydrogen. Initially is given by the compound dihydrogen molecule. This is H2. इसको dihydrogen बोलते हैं. Is discovered by Henry Cavendish. Discovered by Henry Cavendish. But name of the hydrogen was given by Lavoisier. Name of hydrogen is given by Anthony Lavoisier. This is the father of modern chemistry. Father of modern chemistry we can say. इसको modern chemistry ऐसा बोलते हैं. तो यदि हम हाइड्रोजन को देखेंगे तो दिस इज द हाइड्रोजन एटम. इसको बोलते हैं हाइड्रोजन का एटम. दिस इज द हाइड्रोजन का आयन, नथिंग बट द प्रोटॉन. Now this is the H2 that is called as hydrogen molecule.
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन एटम, प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज दैट, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये बचता है, इसको प्रोटॉन बोलते हैं। दिस इज द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। एंड ये हाइड्रोजन में बेटा एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दैट फॉर्म H माइनस, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्राइड आयन। क्या बोलेंगे उसको? वी कैन कॉल इट हाइड्राइड आयन। ओके, so this is the abundant element in the एटमॉस्फेयर में abundant element है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये कंबाइन फॉर्म में होता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एंड दिस इज द हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन ए गैसियस स्टेट। तो ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जहां पर हाइड्रोजन मिलाया जाता है, मिलता है। तो हाइड्रोजन कैन सेपरेट फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जहां से हम हाइड्रोजन इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। So this is the hydrogen. This is discovered by the Henry Cavendish and named as a hydrogen. So particularly hydrogen is nothing but it is called as dihydrogen. H2 and H2, that is called as dihydrogen. Now बोलेंगे बेटा उसको dihydrogen. What you call it? Dihydrogen. Okay. And therefore this is the hydrogen. Is the element belonging to the first group having atomic number 1. इसका atomic number 1 है। Atomic number 1 होके it shows the properties of metal, since the first group element except hydrogen are called as alkali metal, जिसको हम alkali metals बोलते हैं बेटा, and that shows the property also non-metals. Now that is the already you might have studied. There is a contradiction of the hydrogen because hydrogen resembles the properties of both alkali metal and halogen. Halogen and alkali metal दोनों की पोजीशन क्या करता है, रिजेंबल करता है, बताता है। इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। ओके, नाउ दीज आर द नॉन मेटल्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी देन दैट ऑफ द मेटल। मेटल से अलग अलग प्रॉपर्टी है। So this is the brief history of the hydrogen. हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन है, हाइड्रोजन की ब्रीफ हिस्ट्री है। Now in this case we have to see further isotopes of hydrogen. हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। नाउ बेटा हाइड्रोजन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, now they having a equal number of atomic number but different atomic mass number. It means that these are hydrogen atoms having different neutron in their nuclei. उसके न्यूक्लियाई में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, यही न्यूट्रॉन्स हम अलग अलग तरह से इसको देख सकते हैं। So therefore these are the number of neutrons that can distinguish their behavior whether the hydrogen is normal. देखो बेटा नाम क्या है, यहाँ पर लेते हैं हम नेम ऑफ द आइसोटोप्स। उसके बाद उसमें देखते हैं प्रोटॉन, बाद में देखते हैं इलेक्ट्रॉन, बाद में देखते हैं एटॉमिक मास नंबर, and we have to see the neutron, and बाद में लास्ट में देखे उसका रिप्रेजेंटेशन। क्या देखेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन। तो पहला वाला जो नेम है हाइड्रोजन का, उसको बोलते नॉर्मल हाइड्रोजन या सिंपली हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन।
प्रोटॉन कितना है बेटा? 1 है। इलेक्ट्रॉन भी 1 है। एटॉमिक मास नंबर भी 1 है। एटॉमिक मास नंबर होगा तो 1, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 0 होगा। Now representation we write like this 1h1, or we also write like this. असं रिप्रेजेंट करू शकतो 1h1 किंवा 1p1, राइट। अब दूसरा वाला नाम है जिसका नाम है ड्यूटेरियम, और जिसको हम बोलते हैं हेवी हाइड्रोजन। Deuterium, or that is called as heavy hydrogen. Now that contains 1 proton also. Single electrons also 1. Atomic mass number that is 2. Neutron that also right there. 1d2 or 1h2 or 1h2। समझ में आ रहा है? लास्ट वाला जो है बेटा उसको बोलते हैं ट्रिटियम। This is the normal hydrogen is also called as protium. इसका नाम क्या है बेटा? दूसरा नाम प्रोटियम। प्रोटियम, heavy hydrogen, tritium, or that is called as radioactive hydrogen। क्या बोलेंगे तो रेडियोएक्टिव। एटॉमिक नंबर तो सबका 1 है, प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। एटॉमिक मास नंबर न्यूट्रॉन 2, रिप्रेजेंटेशन 3d1, 1s3 or 1p3। Now this indicate the atomic number and this indicate the mass number. Already we have seen so far. Already हमने स्टडी किया है। समझ में आ रहा है सबको? कितने आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के? 3। पहले का नाम है प्रोटियम और नॉर्मल हाइड्रोजन, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम, तीसरे का नाम है ट्रिटियम, और जिसको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। Now they have same atomic number but different in mass number, and they also shows the different number of neutrons in their nucleus। CI में number of neutron वो भी क्या है? अलग अलग है। इस तरह से हम हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स बताइए, आइसोटोप्स को हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेंगे as well as their representations, उसके representations। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, and these are the isotopes। आइसोटोप्स आपको पता है, आइसोटोप की कंडीशन क्या है? सेम एटॉमिक नंबर यानी कि आइसोटोप में क्या होता है? X इज द एलिमेंट, Z एटॉमिक नंबर सेम होता है, ये एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, राइट? yes sir, इसको बोलते हम आइसोटोप्स। आइसोटोप्स बेटा, आइसोटोप्स मैंने उसकी पोजीशन से टोपस का जो टोपस पोजीशन यानी जगह, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस तरह से हम आइसोटोप को क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसमें क्या क्या अलग है? सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, सब में प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक मास अलग अलग है, न्यूट्रॉन भी अलग अलग है। यानी आइसोटोप जब आते हैं तो क्यों आते हैं? उसके में न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। Number of neutrons are different, due to that reason isotopes are observed। So they are classified, distinguished on the basis of their neutron number। neutron number से उसको हम क्या कर सकते हैं? क्लियर है? आया समझ में? 2 पॉइंट
पहला वाला इंट्रोडक्शन, दूसरा वाला एक्सप्लेन. Now if the point is clear now, then you can proceed to take a screenshot of this. Hello. येस सर झालं. झालं का? हो सर. सबका हुआ क्या? आदित्य, कौन कौन है आज मीटिंग? किसने किसने ज्वाइन किया है पार्टिसिपेंट में? आदित्य है, आदित्य महाडिक भी है, आदित्य वाले, सूर्यवंशी, आर्यन भी है क्या? आर्यन समझ में आ रहा है क्या? ताक वाले, अशन, शार्दुल, अरे इतने ही है, 12 ही है ओनली आज, और उसमें 2 तो हम एकेडमी वाले हैं. 10 ही है सर. हाँ? शार्दुल समझता बोला का बेटा? सर. शार्दुल, हो सर. हाँ ओके, आया समझ में आया? आपला कोण आहे? सूर्यवंशी, आदित्य सूर्यवंशी. हा ते मेत्रे नाही का आला? नाही सर. मेत्रे पण आहे का? नाहीये. हा तेच म्हटलं, मेत्रे नाही तो, ओमकार नाही, त्याच्यानंतर आपला तो चंदू नाही, त्याच्यानंतर तो आपला डिसुजा नाही. कहाँ गए सो सब? गए सर. हाँ? डिसुजा है? चलो रब करूँ इसके बाद बेटा. येस सर. ओके. हाइड्रोजन कलरलेस गैस है, पॉइजनस है, and lighter than air. Therefore, if you see the physical properties of hydrogen, मैं additional में आपको बताऊंगा. Lighter than air, air से lighter है, poisonous है, and lighter than air होने की वजह से हाइड्रोजन को हम कंप्रेस नहीं कर सकते. जैसे कि अलग अलग गैसेस के सिलेंडर अभी पाए जाते हैं, आपको पता है ऑक्सीजन के सिलेंडर यहाँ से मंगाए, वहां से मंगाए. तो यदि हाइड्रोजन की हमें जरूरत पड़ेगी तो हाइड्रोजन के सिलेंडर बहुत रेयरली मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं. क्यों नहीं? बिकॉज हाइड्रोजन इज द लाइटर गैस, इनकम्प्रेसिबल गैस. इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस. कंप्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है. Therefore, when you are going to compress, that causes a explosion. उसकी वजह से explosion हो सकता है बेटा. तो हाइड्रोजन इतना आसान नहीं है कंप्रेस करना. मैंने उस टाइम आपको बताया था जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो हाइड्रोजन फ्यूल है, इसलिए हाइड्रोजन कलरलेस गैस है, पॉइजनस गैस है, लाइटर देन एयर है, बट डिफिकल्ट टू स्टोर. If the problem of hydrogen is solved, it means that if we storage the hydrogen, therefore we can achieve one more thing regarding the energy. Because energy का problem हम अभी फेस करते हैं, एनर्जी बहुत जरूरी है. तो एनर्जी का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है यदि हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं. तो हाइड्रोजन की ये फिजिकल प्रॉपर्टी हमने स्टडी की है. नाउ हियर वी आर हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को प्रिपेयर कैसे करेंगे बेटा? हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना इतना आसान नहीं है. देयरफॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, लैबोरेटरी मेथड देखने. पहली लैबोरेटरी मेथड, उसके बाद में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस एंड तीसरे एक्शन ऑफ एसिड्स.
preparation of dihydrogen बोलते हैं इसको। Preparation of dihydrogen का preparation. Now first method is laboratory method. हेलो सर। बोला। हाँ सर, आप ये एनडीए के एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हो क्या? जी। It is ठीक है, सर। related with the NDA because we are covering the syllabus from the Pathfinder. That is our second last topic. So whatever the topic in this session means in this summer we have completed, that is related only NDA. इसमें 11वीं के भी बहुत सारे पॉइंट आ चुके हैं, बराबर ना? यस सर। कर रहा हूँ। यस 11वीं का भी इसमें है, बहुत सारा पॉइंट 11वीं का भी कवर हो चुका है। बहुत सारे पॉइंट 11वीं के हैं इधर है। ये जैसे कि प्रिपरेशन मेथड, ये हाइड्रोजन नाम के टॉपिक 11वीं का है। उसके बाद बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, वो पहला वाला बेसिक कंसेप्ट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर में भी है। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो रिडॉक्स रिएक्शन में कंसेप्ट ऑलरेडी स्टडी किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब ये पूरा जो सिलेबस है दैट इज रिलेटेड विद द 11th एंड 12th। 11th एंड 12th का सिलेबस है ये एनडीए का। उसमें जो इतना है यहाँ पर हमने कवर भी किया है। अब वो फिर से 11th में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखो लैबोरेटरी मेथड्स हैं। तो लैबोरेटरी मेथड में जब हम प्रिपेयर करेंगे डाइहाइड्रोजन, तो लैबोरेटरी में क्या करते हैं आपको पता है कि आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है बेटा कि एक्टिविटी सीरीज नाम, एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमारा गेम होता है खो खो। तो खो खो में क्या करते हैं, जब दूसरे एक खो देता है दूसरे को तो दूसरा भाग जाता है। सिमिलर केसेस हियर, कौन से भी कंपाउंड में यदि दूसरा एलिमेंट ऐड करेंगे तो दूसरा एलिमेंट का कंपाउंड बनता है, वो एलिमेंट डिस्चार्ज होता है, लिबरेट होता है, यानी वो एलिमेंट फ्री होता है। दिस इज द प्रोसेस और दिस मेथड यू कैन जनरली कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे उसको? डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलेंगे। तो वही डिस्प्लेसमेंट मेथड से हाइड्रोजन हमें प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? बहुत ही सिंपल है। तो हाइड्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड लेते बेटा, हाइड्रोजन के कंपाउंड। तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन के कंपाउंड कौन से हैं? हाइड्रोजन जिसमें है शायद वो एसिड होगा, शायद वो बेस होगा, शायद न्यूट्रल होगा, या अदर कोई कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट वैलेंसी रहने वाले एलिमेंट उसमें ऐड करेंगे और हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट उसमें ऐड करेंगे। अब ये एक्टिविटी सीरीज का काम क्या है? जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव है, एक्टिव यानी हाइड्रोजन की जगह वो लेते हैं। इट इज सिमिलर टू द खो-खो टाइप ऑफ रिएक्शंस आर देयर। यानी एलिमेंट क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, हाइड्रोजन लिबरेट होता है। जो लिबरेट हुआ हाइड्रोजन हम अलग कंटेनर में उसको स्टोर कर सकते या स्टोर करेंगे या स्टोर कर सकते हैं, यदि हम पॉसिबल कर सकते हैं। यदि हम स्टोर करेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर बाय यूजिंग दिस मेथड। बहुत ही सिंपल सी मेथड है। कि लैबोरेटरी मेथड में हम क्या करते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट मेथड। In laboratory, hydrogen can be prepared by using a sulfuric acid, solution of sulfuric acid we can say. Okay,
तो solution of sulfuric acid, जड़ियन इज द, उसको जिंक डस्ट बोलते हैं हम, प्लस H2SO4, ये पानी में है बेटा इसलिए एक्वस लिखेंगे। नाउ हमने रेडॉक्स रिएक्शन ऑलरेडी स्टडी की है बेटा। तो दिस इज द जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के बाद जिंक का कंपाउंड बनता है जिसका नाम है जिंक सल्फेट, aqueous प्लस H2 gas plus what? H2 gas, that is a gas liberated, or if we collect in particular cylinder, यदि हम कलेक्ट करेंगे तो आपको हाइड्रोजन प्रिपरेशन मिलेगा। हाइड्रोजन कलेक्ट ओवर द वाटर बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट H2 लाइटर देन वाटर, बराबर है। दिस इज द लैबोरेटरी मेथड, इसको लैबोरेटरी मेथड ऐसे बोलते हैं। दूसरी मेथड है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये हाइड्रोजन हम लार्ज स्केल में प्रिपेयर करेंगे, जब भी चाहे हमें इसकी जरूरत मिले तो हाइड्रोजन कम खर्चा में यहाँ पर हमें मिल सकता है। क्योंकि बेटा हाइड्रोजन हमारे लिए यदि हम फ्यूल बोल के यूज करेंगे, अभी करते भी है, रॉकेट फ्यूल बोलते हैं हाइड्रोजन, रॉकेट फ्यूल। यदि हाइड्रोजन फ्यूल बोल के यूज होगा सब तरफ, तब हमें इजीएस्ट वे और सबसे क्या बोलते हैं कमर्शियल मेथड होना और इकोनॉमिकली अफोर्डेबल मेथड होना था। दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकली अफोर्डेबल मेथड। नाउ इसमें क्या करते कि ये जो है ये पानी रहता है, पानी वाटर कौन सा रहता है जिसमें सॉल्टी वाटर बोलते हैं, सॉल्टी वाटर, बिकॉज प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्टी वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉल्टी वाटर लेते हैं हम यहाँ पर 2H2O लिक्विड, इसका बनता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस बनाने के बाद, इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पर मिलेगा 2H2 गैस प्लस O2 गैस, 2H2 gas plus O2 gas. Now in this case we can obtain oxygen as well as hydrogen. Electrolysis method. यानी क्या करना है आपको, काय नाही सोपं आहे, करायचं काय, हे समुद्राचं पाणी घ्यायचं, मोठ्या टँक मध्ये घ्यायचं, मोठी टँक म्हणजे आपलं हीटर बिटर तर नाही घ्यायचं, एकदम बॉयलर सारखं, हेलो बॉयलर मध्ये कसे बॉयलर्स असतात तसं घ्यायचं। हाँ सर, हिंदी में बोलो ना। नंतर मोठं टँक घेतल्यानंतर तुम्ही त्याचं इलेक्ट्रोलिसिस करायचं। आता इलेक्ट्रोलिसिस म्हणजे काय, दोन रॉड घ्यायचे, कॅथोड आणि एनोड मोठे मोठे, ते काही छोटे छोटे होणार नाही त्याने, उग आपले बॅटरीचे रॉड घेतले, सेलचे घेतले, गुड नाइट टाकले, वैसा नहीं होगा भाई, बड़े बड़े रॉड लगेंगे आपको। जितना बड़ा टैंक है उसके कंपैरिजन में रॉड भी बड़े होने चाहिए, ठीक है, इतने भी बड़े नहीं कि टैंक के बाहर जाए, ठीक है। यदि हमारे पास 2 लीटर पानी है, 3 लीटर पानी है, तो इसके लिए इतने बड़े रॉड चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस करने, बराबर है, 10 लीटर पानी तक। और टंकी भर पानी है, 40-50 हजार लीटर पानी है, तो ये क्या करेंगे रॉड भाई, इतने सारे, इतने छोटे, तो बड़े रॉड होना, तो ये रॉड डालेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जब आएगी, इलेक्ट्रिसिटी जब हम सप्लाई करेंगे तब इसका होगा इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, वही इलेक्ट्रिसिटी फिर कहाँ से लानी है, यानी कि
आपको इको फ्रेंडली हाइड्रोजन बनाना है, बाद में ये हाइड्रोजन आपको फ्यूल बोल के यूज करना है, तो प्रिपेयर हुआ हाइड्रोजन है कि नहीं। वो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर सकते हैं फ्रॉम द सोलर पावर, इवन फ्रॉम द विंड पावर, इवन फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर। जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। कोयला नहीं जलाना है। क्यों नहीं जलाना है? बिकॉज जब हम कोयला जलाएंगे, कोयला इज द कार्बन, एंड कार्बन यदि जलाने के बाद उसका होगा पोल्यूशन। तो हमें इको फ्रेंडली हाइड्रोजन बनाना है, इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। यही इलेक्ट्रिसिटी यदि हम सप्लाई करेंगे वाटर में, सॉल्टी वाटर में, प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वाटर एसिडिफाइड वाटर होना या फिर सॉल्टी वाटर होना, यानी जो सी वाटर है, बराबर है, समुंदर का पानी है, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ठीक है? तो समुंदर का पानी जो बेटा है, ये समुंदर का पानी है। समुद्र का पानी, उसका यदि हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें हाइड्रोजन मिल सकता है। तीसरी मेथड है बाय यूजिंग एसिड्स। एसिड्स यानी हाइड्रोजन एसिड्स। हाइड्रोजन एसिड्स ऐसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन है, तो जिसको बोलते हैं बेटा मिनरल एसिड्स। यू कैन कॉल इट दैट इज, यू कैन कॉल इट, इसको बोलते हैं मिनरल एसिड्स। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स। यस सर। एक मिनट। हाँ, मिनरल ऍसिड म्हणजे कोणते? आपले HCl असतील, H2SO4 असतील, सच आर द ऍसिड्स। हे ऍसिड्स असतील त्याच्यामध्ये, HCl असतील, अजून भरपूर टाइप्स ऑफ ऍसिड। आता ही जी प्रोसेस आहे, सेम प्रोसेस घ्यायची, फक्त सल्फ्युरिक ऍसिड जर घेतला तर ते लॅबोरेटरी होते। आणि बाय युजिंग ऍसिड्स, हायड्रोजन ऍसिड्स, याच्यामध्ये तुम्ही हेही घेऊ शकता, जलियन सॉलिड प्लस H2SO4 aqueous पानी में क्या बनेगा बेटा? ZnSO4 aqueous प्लस H2 प्लस H2 H2 दूसरा तुम्ही घेऊ शकता बेटा, Zn सॉलिड प्लस HCl 2HCl 2HCl aqueous, करेक्ट। क्या ZnCl बनेगा? Z बनेगा बेटा aqueous प्लस H2 gas। You can also take another one is that आप कौन सा भी ले सकते हैं, Fe ले सकते हैं, aqueous ले सकते हैं प्लस नाइट्रिक एसिड। Now that gives क्या बनेगा? FeNO3 twice plus H2 gas। Now यहाँ पर ऐसे लेंगे, कौन सा एसिड रहे? मिनरल एसिड का तर फिराना लिहिले फिराना का म्हणतो तो? फिराना कोणता ऍसिड ऍसिड म्हणतो? मिनरल ऍसिड। हा, फिरहाना कोणी काय, कोणता ऍसिड? कोणी विचारलं तरी क्वेश्चन, कोणता ऍसिड रे बेटा? हायड्रोजन ऍसिड का? हायड्रोजन ऍसिड म्हणजे हायड्रोजन इनऑर्गॅनिक ऍसिड बनायचं। हे कोणतं?
कोणतं म्हणलं मला काही कळलं नाही कोणी विचारलं परत रिपीट विचारा बरं बोलो सर बोला ना. लेफ्ट झाला तो. लेफ्ट झाला तो. हा हा लेफ्ट झाला ज्यानं विचारलं ते. अच्छा अच्छा कोणता असेल काहीतरी विचारलं त्यांनी ठीक आहे ओके असू द्या काय पिराहाना म्हणला तू पिराहाना हा पिराहाना काहीतरी म्हणला पिरहाना तेच काहीतरी वेगळं होतं ते पिरहाना ठीक आहे ना एखाद्या ऍसिडचं नाव असेल वेगळं फार काही याच्यामध्ये नाही पिरहाना ऍसिड आता बघा याच्यामध्ये कौन हाइड्रोजन है सो यहाँ पर आपको नोट लिखनी है बेटा मोस्ट एक्टिव element than hydrogen liberate hydrogen from their solution उसके सॉल्यूशन से हाइड्रोजन अब कौन से देखो एक सीरीज है मेटल की एलिमेंट की उसका एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं ओके कौन से सोडियम पोटॅशियम ते नाही का मागे सांगितलं तुम्हाला आठवत असेल हो लिथियम सर के लिथियम. सरदार नाही का हो हाँ काका नाना मांगे आलू पानी में